just you can imagine today the students, they are much more intelligent than what we were at that point in time. It's a matter of time because we don't have the access, we don't have the Wikipedia yet, we're not having the YouTube, blah, blah, blah. And that is why the level of the knowledge has become very high. आज समापन हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मैं रवि मिश्रा हूँ, CHRO for BITS Pilani all campuses in India and Dubai. I had been witnessed the passion of the alumni. This was the first major gathering, structured gathering of the alumni, and I'm very much impressed the passion, relationship they have shown with their participation in this. How do you think about this IMIT business? So what I have come to know about IMIT is old institute, 18 years plus around, and the way I had witnessed today, the students which are placed, which are working, who are very grounded. So one of the very critical success factor in life is that if the person is very grounded and humble. So in the education, learning and development, acceptance of truth and authenticity is very important, which I am very much impressed to see the students. They were talking very naturally, very genuinely, with a very great candidness. So that is how they have been built up, developed by the institutes, and that credit goes to the faculty and the management of the institutes. How much you motivate the students when you come and meet up with the students? So I had a brief interaction with few students, and I could see and I could feel the energy they were able to show in a different way of participation, sharing their success stories, sharing their struggle during those periods in the beginning. Like I could see that there were students from first batch passing out in 2010. At that time, the management was not so popular in that terms what it is today. Those were the days when the management and engineering both were very popular. But in case of UP in our state, the students were more interested about the engineering than the management, because the less corporate sector available in the UP in those very days. So the job opportunity used to be much more in the engineering than the management. So in those days, these students have made their struggle, they have made their career. That's inspiring. सर, जो यहाँ मैनेजमेंट डिग्री फाइनल करके जाते हैं अलग अलग कंपनियों में, उनको कई तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार का बच्चों को स्किल डेवलप करना चाहिए ताकि वो आसानी हो? So one part is that job and future of work is changing very fast, very fast. So whatever the skill and knowledge was required 3 days back, it is no more relevant. It's the age of the AI, and future of work is a very different. So the faculty and student both should be very cautious of what is the skill requirement required for tomorrow. So the real life case study. Second part is that today job is not based only on the core knowledge, rather knowledge which is application based.
So students are interested only to learn those things which is able to help them find a job to make a career. I request both having students and the faculty as well that they should motivate and catalyze the mindset of the students based on the application based learning, real life case study, in inviting the guest lectures from the industry to share their real life story so that the students can learn, and also it is the responsibility of the institution that they should focus on new tools of the learning and connected with the job requirement in terms of whether it AI or technology or platform of the different way of automation in their career. सर, आज फ्यूजन फेस्ट जो आप 3 दिन चल रहा था आपके कॉलेज में, आज इसका समापन है, इसके लिए क्या कहेंगे आज? फ्यूज़न फेस्ट हमारा वैसे तो बेसिकली ये एनुअल फंक्शन है। हम लोग एल्यूमनाई मीट, एल्यूमनाई का मतलब यही है जो पिछले स्टूडेंट हमारे पर्टिकुलरली MBA के हैं जो पास आउट करके गए हैं उनको भी कैंपस में एक रीयूनियन कराते हैं हर साल, लेकिन अब की बार हमने उसको क्लब कर दिया एनुअल फेस्ट के साथ। आज क्लोजिंग है एनुअल फेस्ट की, तो हमने जितने 2008 से लेकर के 24 तक के जितने भी MBA के स्टूडेंट हमारे पास आउट हुए, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उनको सबको इनवाइट किया था। और वो कुछ फैमिली के साथ आए हैं, कुछ अकेले आए हैं, और मैक्सिमम लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। उनका हमने लेक्चर करवाया है। हमारे चीफ गेस्ट अभी रवि मिश्रा जी बॉम्बे से आए थे, उन्होंने कहा है लुल्लू माल के HR वर्मा जी थे, उन्होंने भी उनका संबोधन किया। उन्होंने थोड़ा कल्चर प्रोग्राम भी किया, काफ़ी डिस्कशन हुआ और पुरानी बातों को याद किया, उनकी वीडियो वगैरह दिखाई गई और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि जब IMRT कॉलेज में तो किस टाइम 10 साल पहले कैसे थे, अब इंडस्ट्री में जा कर के या बिजनेस में जा कर के या अपना बिजनेस शुरू करके अब वो क्या महसूस करते हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा और लंच ब्रेकफास्ट रहना करना हमने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी और दैट वाज इट। मतलब एल्यूमनाई मीट के बारे में ये था। पार्टिसिपेंट्स के अंदर कितना जोश और जज्बा देखने को मिला? देखिए, जब आप कभी पुराने अपने दोस्तों को आप भी मिलती होंगी या हम भी मिलते हैं, हम अपनी उम्र भूल जाते हैं और अपने डेजिग्नेशन ये भूल जाते हैं कि मैं IAS हूँ, मैं IPS हूँ या मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ। हम बच्चे बन जाते हैं। उनके अंदर भी वो जज्बा था कि उनको ये याद ही नहीं था कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं बाल बच्चेदार हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है। देवर बिहेविंग जो उसी जोश में थे जैसे वो कॉलेज लाइफ में यहाँ होते हैं। और जज्बा ही देखने के लिए हमने रीयूनियन जो कराते हैं, बेसिकली जज्बा ही देखा जाता है कि अपनी बचपन की याद में या उसी का हम पहले की तरह से बच्चे वापस आ जाएँ, और वही जज्बा देखने को मिला। मतलब हमने भी बड़ा मज़ा आया जब उनकी वीडियो, उनकी पुरानी यादों की हमने चलाई वीडियो। हम लोग भी अपने बचपन की, अपने गांव की, अपने स्कूल की, अपने प्राइमरी स्कूल की याद कर रहे थे कि हम लोग भी कभी इस टाइप से खेलते थे, शरारत करते थे, एक दूसरे को छेड़खानी करते थे। यही आनंद होता है लाइफ का, यही था मेन। तो बाकी आज जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें अवार्ड्स दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? अवार्ड तो देखिए एक सिंबॉलिक, हम क्योंकि हमारे गेस्ट हैं वो, अगर कॉलेज में कोई हमारा गेस्ट आता है, रिटर्न गिफ्ट कहिए उसको कि एक याददाश्त लेके जाएं कि उनको जब अगर वो टेबल के ऊपर एक मोमेंटो रखेंगे तो उनके जो गेस्ट आएंगे उनको याद दिलाता रहे कि इस तारीख को IMRT बिजनेस स्कूल में हम लोग IMRT के एल्यूमनाई मीट में गए थे। और उनको मोटिवेट करेगा आगे जब भी मौका होगा, जब भी, अगर हर साल हमने सोचा है कि इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको इन्वाइट करेंगे और वो आएंगे। मोमेंटो का तो एक ये घर में रखते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी देता है। बाकी तो उनकी मोमेंटो यही है कि हमने मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए, सारी व्यवस्था रहने की, खाने की, रुकने की, जो व्यवस्था, चाय पानी, हाई टी, कल्चरल प्रोग्राम, ये हमने उनके लिए सब अरेंज किया। अगर 10 बच्चे एक क्लास पर मिलना भी चाहें किसी शहर में, वो कहाँ इकट्ठे हों, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उनको, किस होटल में जाएँ, कौन ऑर्गेनाइज करेगा। हाँ, कॉलेज ने इंस्ट्रूमेंट बन के ऑर्गेनाइज़र का काम किया। हमारे माथुर साहब ने, आपको शायद ये जो CEO हैं, क्योंकि ये इनका बहुत एक्सपीरियंस है MBA वगैरह का, एंड ही वाज द ऑर्गेनाइज़र। इन्होंने सारा प्लान किया, सारी फैकल्टी को लगाया, टेलीफोन किया, कंफर्मेशन की और ये सारा ऑर्गेनाइज किया। तो अभी जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, जी, उनके फ्यूचर, उनके करियर के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का मोटिव ये भी है, जो 10 साल पहले बच्चे पास आउट करके गए हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए गए। जो करंट बच्चे का, उन्होंने बताया कि जब हम यहाँ थे तो कैसा महसूस करते थे, और लेकिन अब 10 साल के बाद हम याद करते हैं
कि अपने कॉलेज में कितना हमारे साथ अपनापन यहाँ मिलता है, कितना हमें बोलने का मौका दिया। बच्चों ने बताया कि हम बिल्कुल राह थे, बिल्कुल गांव देहात से आए थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ पहुँच पाएंगे। तो नए बच्चों के लिए जब पुराने बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। और पर्पज़ इसका एलुमनाई मीट का नए बच्चों को मोटिवेट करना भी एक पर्पज़ होता है। वो पर्पज़ हमारा फुलफिल हुआ। और हमने अब की बार अब के बाद जो पुराने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे या लखनऊ में जो अपना बिजनेस करते हैं, ऐसा अपना उन्होंने सेटअप तैयार किया है, उनको इनवाइट भी करेंगे। वो हर वीकली या मंथली 15 दिन के अंदर नए बच्चों को जो अभी हैं उनको लेक्चर देते रहेंगे और मोटिवेट करते रहेंगे। जी, तो ये 3 दिन आपके कार्यक्रम जो थे जी प्रोग्राम्स में कैसे निकल गए, आप कुछ इसके बारे में एक्सपीरियंस अपना बताएंगे? मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब मेरे लिए तो इट वाज ए मतलब फेस्टिवल। घर में शादी होती है ना, बेटा बेटी या जिसकी भी, तो ऐसे निकल जाते हैं। दिवाली पे भी 2-3 दिन ऐसे निकल जाते हैं। इट वाज ए फेस्टिवल फॉर मी। तो फेस्टिवल में तो कहीं गाना चल रहा है, कहीं नाच चल रहा है, कहीं मेहंदी चल रही है। सेम सिचुएशन है, कहीं रंगोली चल रही है, कहीं मेहंदी। और मेहंदी एक्चुअली मेहंदी हुई है, मेहंदी कंपटीशन। रंगोली भी बनी है, रंगोली कंपटीशन। जो शादी ब्याह में, दीपावली पे, फेस्टिवल में होता है, सारी चीज़ें हमारा फेस्टिवल की तरह से सेलिब्रेट एक हुआ। फेस्टिवल के तरीके से सारा हाँ कल्चरल बिल्कुल। और प्रोग्राम वही फेस्टिवल में जो होते हैं, रंगोली है, गीत है, मेहंदी है, और बताओ फेस्टिवल में क्या बचा? मिठाई है, खाना खाना है, डांस है, भंगड़ा है, सब कुछ हुआ है। तो आपके साथ साथ स्टूडेंट्स ने भी फुल्ली एंजॉय किया? मेरा एंजॉयमेंट तो स्टूडेंट को देख के हो जाता है ना। हम लोग तो अपना एंजॉय कर ही चुके हैं। अब तो हमारा एंजॉयमेंट ही स्टूडेंट का एंजॉय। मतलब हमें तो स्टूडेंट को जब चेहरे पे खुशी देखते हैं, हमारा खून तो वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है ना? थैंक यू। आज के समय में जैसे एजुकेशन, लर्निंग और स्किल का ज़्यादा हर कॉलेजों में ध्यान दिया जाता है, तो हर कॉलेजों की अपेक्षा यहाँ क्या अलग सिखाया जाता अब है? ये उनकी लाइफ में थोड़ा डिफरेंस होता है। आज जो एल्यूमनाई पिछले लोगों ने, जो बच्चों ने आज बताया, वो यही बताया है। इस कॉलेज के अंदर अब हम महसूस कर रहे हैं, पढ़ाई तो हम कर ही लेते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो एक दिन भी क्लास में नहीं आए, लेकिन किताब रट करके वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं। हर कॉलेज में, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम है। लेकिन जो कॉलेज में सीखते हैं ना, हम बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट देते हैं, खेलने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, डांस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, आपस में डिस्कस करें, खो खो खेलें, एक दूसरे से लर्न करें। पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं, कि यारी दोस्तों में 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक भी लर्निंग है। अगर एक दूसरे शरारत करें, वो भी लर्निंग है। वी गिव द अपॉर्चुनिटी कि आप लर्न करो, फ्री रहो। पिक्चर देखने जाना, पिक्चर देखने जाओ, पार्टी एंजॉय करें, पार्टी करो, डांडिया नाइट करो, जैसे कल्चरल प्रोग्राम है, यही हम